کرتے ہیں کچھ سود کے حوالے سے جو چیز عام ہوتی جا رہی ہے ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے آپ یہاں پہ اتنا قرض لے لیں اور ہر ہفتے 1000 روپے بنتا جائے گا. ٹوٹل اماؤنٹ سے تقریباً آپ کو 10% زیادہ دینا پڑتا ہے. کچھ ایپس ایسی بھی ہیں جہاں پہ آپ کو 20-30% زیادہ ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے اماؤنٹ آپ لیٹ کرتے جاتے ہیں, اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. جیسے بہت سے برائیاں اس طرح سے معاشی برائیاں اس طرح تھیں جن سے حکماً منع کیا گیا ہے اور ان کو شرعاً بھی منع کیا گیا ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے, لیکن اب وہ اس طرح سے عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے. بس ہمیں ہے کہ اگر ہم ماڈرن ورلڈ میں آگے جا رہے ہیں تو تمام ہماری اقدار یا جو بھی حکمن چیزیں منع کی گئی ہیں اس کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصیر کمبوز صاحب جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سود بیسیکلی جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں, ڈیفرنٹ ایپس بن گئی ہوئی ہیں اب جو بیسک بڑی بڑی ایپس ہیں جو قرض دے دیتی ہیں ہمیں, اور ہفتے کی بنیاد پر ٹوٹل اماؤنٹ سے 1000 روپیہ اضافی آپ کو دینا پڑتا ہے. جتنے مہینے وہ لیٹ ہوتا جائے گا اتنے آپ کے پیسے زیادہ بنتے جائیں گے. اگر آپ نے 10,000 روپے کسی ایپ کے تھرو قرض لیا ہے تو آپ کو ہفتہ وار 1000 روپیہ ان کو ادا کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نے ایک مہینے کے بعد وہ قرض ادا کیا ہے تو آپ کو 4000 روپیہ پڑے گا. تو اس حوالے سے قانوناً کوئی حیثیت ہے اس کی؟ قانونی کوئی کیا چارہ جوئی ہو سکتی ہے, یا انسٹالمنٹ پہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس اقرا. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. ہم کیونکہ مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ہمارے آئین میں بھی لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنہ کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. ہمارے ملک میں دو طرح کا سودی نظام ہے. ایک تو وہ ہیں جو وہ انڈیویجولز ہیں, پرائیویٹلی لوگ جو اپنے طور پہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں, وہ چاہے کسی نے کوئی ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے کر رہا ہے کوئی, یا کوئی اپنا آفس بنا کے بیٹھا ہے, یا پرائیویٹلی کر رہا ہے. دوسرا ہمارا نظام ہے بینکنگ کا. تو اس میں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا حصہ ہے پرائیویٹلی جو لوگ لون دیتے ہیں, سود پہ پیسے دیتے ہیں, ہمارا یہ ٹاپک ہے. اس میں بیسیکلی جو ہے وہ لوگوں کو سود خوروں سے ایپ ان میں کنسیڈر نہیں ہوتی ہے. ایپ اسی میں آئے گی, کیونکہ جو کمپنی بینک جو ہے جس کو گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے رجسٹریشن ملتی ہے وہ ایک الگ کیٹیگری بن جاتی ہے, اور ایک جو پرائیویٹلی لوگ کرتے ہیں ایپ کے ذریعے کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی چھتری ان کو نہیں ہوتی, اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اگرچہ جو دوسرا گورنمنٹ کی شیلٹر کے نیچے جو بینکاری نظام ہے اس پہ بھی ہمارے جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے 2022 میں ججمنٹ دی, اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ 5 سال کے اندر 2027 تک آپ اپنا جو نظام ہے ملک کا اس کو سودی نظام سے جو ہے وہ جو اسلامک جو ماڈل ہے اس کی طرف لے کے آئیں, جس میں اسٹیٹ بینک نے اپیل دائر کی. پھر بعد میں اسٹیٹ بینک نے وہ اپیل بھی واپس لے لی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس میں ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اناؤنس کیا جی ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور آئین میں بھی یہ جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں آئین میں آرٹیکل کے ذریعے ایڈ کیا گیا ہے کہ 2028 تک جو ہے ملک سے ہر طرح کا سودی نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا. لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے اس وقت جو پرائیویٹلی لوگ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اور اگر سود پہ کسی نے مجبوری کے تابع 10,000 روپیہ لیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا 50,000 واپس کریں گے, تو وہ جو ہے اس کی قسطیں بنا دیتے ہیں. اور جب وہ 2 سال سے پیسے دے رہا ہوتا ہے, جب وہ پوچھتا ہے کہ میرے پیسے ختم ہو گئے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی ایکچول اماؤنٹ تو یہی پڑی ہے. یا کوئی پیسے نہیں دے رہا تو وہ سود در سود 50,000 جو ہے وہ 5 لاکھ بن جاتا ہے. لوگوں سے جو ہے وہ گارنٹیاں لے کے, لوگوں کے زیورات رکھوا کے جو ہے وہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیے جاتے ہیں, اور پھر لوگوں سے بلینک پیپر لیے جاتے ہیں, اسٹامپ پیپر, بلینک چیک لیے جاتے ہیں. پھر جب وہ واپس نہیں کر پاتے تو پھر ان کو جو ہے وہ کرمنل لیٹیگیشن کے ذریعے یا سول لیٹیگیشن کے ذریعے ان کو ہراساں پریشان کیا جاتا ہے, اور لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ ٹارچر میں ڈالا جاتا ہے, پریشانی میں ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے ملک میں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ جان و مال کا, ڈگنیٹی کا, سیلف رسپیکٹ کا جو ہے وہ پروٹیکشن کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہر وہ ایسا جس کو آپ کاروبار کا نام دیتے ہیں وہ کاروبار نہیں ہوتا, وہ جوا ہوتا ہے, یا وہ جو ہے وہ لوگوں کو ہیرس کرنا سود پہ پیسے. تو اس لیے سودی نظام کی قرآن پاک میں بھی بڑا واضح ہے,
सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, और सूरह आल इमरान में फरमा दिया है कि सूद जो है वो ममनू है। ऐसी मसलन चीज़ जिसमें आपको फिक्स पोर्शन मिलता है, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या मामला मिलता है और आप खसारे के या नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो वो सूद है। तो लिहाजा इससे ममनू किया गया है और इसको हराम करार दिया गया है और खुदा से जंग करार दिया गया है कुरान तो पाक में। इंस्टॉलमेंट पे जो चीज़ें हम लेते हैं, क्या वो भी सूद के ज़ुमरे में आती हैं? तो इस सिलसिले में भी कोई कोर्ट एक्शन ले सकती है? देखिए, जो भी फिक्स रेट तय कर दिया गया वो जो है वो सूद है। कहा गया कि आपने 10,000 की चीज़ ली है तो आपने फिक्स इसके ऊपर 20,000 रुपया देना है। देखिए, एक होती है कोई चीज़ है, उसकी एक्चुअल प्राइस है और उसको बनाने में जो अखराजात आए, उसको लाद कर ले जाने में जो अखराजात आए, तो उस पे जो है एक जायज़ सा मुनाफा जो है गवर्नमेंट या रियासत जो है वो चीज़ के बेचने के लिए, या एक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड होती है वो एक जायज़ मुनाफा रख देती है। वो एक बिज़नेस है, वो कारोबार है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादती करके जबर करके एक्चुअल अमाउंट से 4-4 गुना, 5-5 गुना, 10-10 गुना वसूल किया जाता है और फिक्स अमाउंट करके वसूल किया जाता है, तो वो सूद है। तो ऐसी कंपनियां जो इंस्टॉलमेंट्स पे लोगों से 4 गुना कीमत के पैसे वसूल करती हैं और गारंटी पे जो है वो उनसे चेक्स ले लेती हैं ब्लैंक, या उनसे ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवा लेती हैं, या फिर उसके बाद जो है पैसे जो है कैश की सूरत में लोग बैठे हैं, लोगों को जो है वो वर्गलाते हैं, लोग फिसलाते हैं, लोगों की ज़रूरत होती है, कहते हैं ये ज़मीन का टुकड़ा जो है इसके कागज़ मेरे नाम कर दें, ये जो आपकी बीवी का जेवर है ये हमें दे दें, हम आपको जो है वो कर्जा सूद, वो लोगों को जो है वो मोटिवेट करते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, फिसलाते हैं। तो ये कानून जो है, इस कानून का नाम है जो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो बनाया गया है, और इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए कि लोग माशरे में जो है वो लोगों में बड़ी बेचैनी है, लोगों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, तो इसकी फिर सूद की जो है प्रोहिबिशन के लिए जो है द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट लोन एक्ट है 2022 का, ये पंजाब का है। तो अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी को सजा वगैरह दी गई है? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ना माशरे में एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को कवानीन का पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग जब अपनी मजबूरियों के ताबे सूद पे पैसे लेते हैं तो कोई चेक दे दिया, फ़र्ज़ करें चेक दे के आप साइन कर देते हैं, तो वो शख्स जिसने सूद पे पैसे दिए होते हैं वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने चल पड़ता है। तो लोग इस हैरेसमेंट और इस ब्लैक मेलिंग से ब्लैकमेल होते हुए वो रेशो नहीं है इतनी अदालतों का रुख करने की या FIR दर्ज करवाने की। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आगाह करना चाहूँगा माशरे को कि बिल्कुल जो शख्स सूद पे पैसे देता है, और या किसी ने सूद पे पैसे लिए हैं, या कोई सूद पे पैसे लेने के लिए, या कोई शख्स सूद पे पैसे देता है, उसकी पब्लिसिटी करता है, एडवर्टीज़मेंट करता है, या लोगों को वर्गला फिसला के लोगों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा के वो उसको ले जाता है, उसमें अबेटमेंट करता है, उसमें कमीशन लेता है, तो इस कानून के तहत द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट लोन एक्ट 2022 के तहत ममनू कर दिया है। और ये कानून चारों सूबों में नाफिजुल अमल है, पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है। अभी तक किसी को सजा दी गई है इस बारे में? इसमें अदालतों में मैटर रिपोर्ट होते हैं और इसमें क्या कह दिया गया है कि 10 साल सजा है। इसमें जस्टिस ऑफ पीस को कोई बंदा मतलब अब माशरे में किसी को कोई सूद के पैसे दे के अब ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो मैं उसको रेमेडी सुजेस्ट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो बिल्कुल सूद पे जो है वो पैसे लिए हुए पैसे जो है उन पे सूद अदा ना करे। लेकिन सूद देने वाले जो लोग होते हैं, जो अक्सर सूद दे रहे होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं, इवन इंस्टॉलमेंट्स का जो काम कर रहे होते हैं उन्होंने कुछ ऐसे लोग रखे होते हैं जो किसी के पैसे निकलवाने हैं या उनके लिए एक अलहदा से उन्होंने डिपार्टमेंट रखा होता है, मुझे शायद उसका नाम उस तरह से नहीं याद आ रहा, मे भी आ जाए प्रोग्राम के दौरान। तो वो तो उनके साथ पंगा लेना या उनसे ऐसी कोई छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो पैसे सूद पर ले रहा होता है वो पहले ही कर्ज में होता है या पहले ही मुश्किल में होता है, तो वो इन छेड़खानी से ज़रा दूर ही रहता है कि जितने भी लीगल मामलात है उसके तक मैं ना चला जाऊं, या जितने भी चीज़ें हैं हमारी आसानी हो रही है। जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी चीज़ बन जाती है, अगर एक इंस्टॉलमेंट या डबल इंस्टॉलमेंट डबल चाह रही है तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? अगर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, मैं आपसे तीसरी बार पूछ रही हूँ
कि अभी तक किसी को कोई जुर्माना, कोई ऐसी सज़ा हुई है? क्योंकि 2022 से कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर तो सज़ा हुई है तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट की जा सकती है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कानून मौजूद हैं हर एक मैटर के लिए। देखिए मिस इकरा, प्रोसीजर कानून का दरवाज़ा, बहुत सारे पर्चे हुए होंगे, पूरा पाकिस्तान है, 24 करोड़ अवाम है, ठीक है ना। इसमें 2022 के बाद मैटर रिपोर्ट हुए हैं, यकीनन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, लेकिन मैं वही बात बता रहा हूं कि लोगों को आगाही और अवेयरनेस के आप थाने में जाके अब इस कानून के तहत कंप्लेंट दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करवाएं, जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज को जाके कंप्लेंट करें। पहली बात तो यह है कि सूद पे पैसे लेना हराम है, शरन और कानूनन आप इस तरफ ना जाएं जितनी मर्जी मुश्किल में हो। माशरे को भी ये आगाही होनी चाहिए कि लोगों के ज़रूरियात के तहत लोगों के काम आना चाहिए, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पैसे लेने भी हैं जो एक जायज़ मार्जिन के साथ आप किसी से ले रहे हैं, या आप कोई बंदा आपको कर्ज़ हसना दे रहा है वो ले, लेकिन सूद पे पैसे लेके आप फंस जाएंगे। दूसरी, अब अगर जो बंदा फंस गया है, नो डाउट ये माफियाज होते हैं, ये ब्लैकमेलर होते हैं, इनके पास पूरा नेटवर्क होता है, इनके सामने खड़ा होना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन रियासत के सामने कोई ताकतवर नहीं होता। माफियाज जो है नो डाउट जहां रियासत कंप्रोमाइज़ कर जाती है वहां माफियाज जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, बहुत सारे पर्चे हुए हैं और बहुत सारे केसों में इन 3 सालों में सज़ाएं हुई हैं, लेकिन वो रेशो नहीं है जिस रेशो से सूद पे लोग पैसे लेते हैं। लेकिन हर कोई जाके जिस तरह ये कानून से कोई जाके दरवाज़ा खटखटाए, लोगों की जान छूट जाएगी। लेकिन अगर पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया हुआ है और बता दिया हुआ है कि मैं इतने पैसे पे इतनी पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैंने कोई सोना वगैरह गिरवी रखवा दिया है तो इतने अरसे तक मैं इसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह देता रहूँगा, तो भी वो जाकर कहीं पे कानूनी कोई चाराजोई कर सकता है। देखिए कोई भी शख्स है, चाहे इस कानून के आने से पहले किसी ने सूद पे पैसे लिए हैं मजबूरी के तहत, या इस कानून के बाद पैसे लिए हैं और जिस शख्स से लिए हैं वो उनको परेशान कर रहा है, हरासा कर रहा है, वो फ़ौरन इस कानून के तहत जाके कंप्लेंट दायर करें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट, जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में। वो मुतलका थाने के पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देगा, उसकी FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होने के बाद ये एक बड़ा जुर्म है, इसकी सज़ा 10 साल है, इसका जुर्माना 1 मिलियन है और मैक्सिमम सज़ा 10 साल हो सकती है और मिनिमम 5 साल हो सकती है। और ये समरी ट्रायल है और इसमें जो है ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, नाकाबिल राजीनामा जुर्म है और इसमें प्रोसीजर भी इतना लंबा नहीं है कि केस ज़्यादा अरसा चलेगा। और अदालत जो है वो इस चीज़ को कैलकुलेट करेगी कि ये एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो उसको इस केस को सुनने का इख्तियार है, और उसमें जो है वो जिस शख्स ने सूद पे पैसे दिए हैं उसके लिए ऑफेंस तो है ही है कि उसने सूद पे पैसे दे के जुर्म किया, यानी प्राइवेटली सूद पे पैसे देना गुनाह भी है और कानून में जुर्म भी करार दे दिया गया है। लिहाजा जो सूद पे लोग पैसे देते हैं वो बाखबर हो जाएं कि वो बाज आ जाएं, ये कानून जो है वो उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। दूसरी बात है कि सूद पे जो पैसे दे के जब अदालत में मामला आता है तो बाद का लोग ब्लैकमेल होके, हरासा होके एक बड़ी अमाउंट जो है वो सूद की मद में दे चुके होते हैं, तो उस रकम की कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेशन होने के बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या इसने एक्चुअल अमाउंट अदा कर दी है। अगर एक्चुअल अमाउंट सूद की मद में चली जाएगी तो वो फिर उसको मना कर दिया जाएगा कि आप एक्चुअल अमाउंट आगे मज़ीद ना दें। अगर सूद की मद में ज़्यादा रकम दे दी गई है तो अदालत ऑर्डर करेगी कि जो वो अजाफी वसूल की हुई है वो आप वापस करें और जो एक्चुअल अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी। और अदालत जो है वो अगर वो वापस नहीं करता तो अदालत के पास रिकवरी का एक प्रोसीजर है कि वो अदालत अपना जो है वो कानून के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है, या लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट के तहत जो है, या सिविल प्रोसीजर कोड के एक्ट जो है वो उसकी रिकवरी का प्रोसीजर फॉलो करेगी और वो जेल में जाएगा, वो जुर्माना भी अदा करेगा। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इस एक्ट के आने से पहले जो सूद का कारोबार सरेआम होता था, अब लोग लुक छिपके करते होंगे, लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि 2 बातें हैं। मजबूर तो छुपके चला जाता है लेने, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उसको देने वाले को ये खौफ ज़रूर है कि कल को रिपोर्ट हो सकता है। देने वाला जो है वो इस तरह ब्लैकमेल नहीं अब कर सकता जिस तरह के इस कानून से पहले ब्लैकमेल करता था। केस आपके सामने आया लाहौर में जिसको कोई पनिशमेंट मिली हुई है, मेरे जुर्माना किसी ने दिया होगा? मेरे
जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मैंने खुद भी एक केस किया था, मैंने कंप्लेंट फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में, और उसमें जो था वो रकम जो उसकी सूद की मद में वो शख्स दे चुका था, उससे जो वो रुपए जो थे वो वापस हुए थे, जो अजाफी दे चुका था। तो इसलिए जो है वो मैं आगाह करूँगा कि इसमें जो है वो कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई ब्लैकमेल हो रहा है सूदखोरों के हाथों तो वो ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। इस कानून के तहत जाके जस्टिस ऑफ पीस डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जाके एक जस्ट आपने कंप्लेंट दायर करनी है। उस कंप्लेंट पे जो है मुतलका थाने के SHO को डायरेक्शन हो जानी है, उसने FIR दर्ज करके वो सूदखोर शख्स जो है या जो उसको फैसिलिटेट करने वाले लोग जो हैं या जो सूद पे पैसे देने वाले लोगों का नेटवर्क है, वो सारे इसकी जो है वो जद में आ जाएंगे। और वो शख्स जो ब्लैकमेल हो रहा होता है उसको नज़र नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं, तो उसके साथ रियासत या रियासत के अदारे खड़े हो जाते हैं, और वो जो उसने अगर उससे हैरेसमेंट के तहत या जबर के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करवाया होता है या कोई चेक लिया आता है, तो उससे भी उसकी खलासी हो जाती है या जान बख्शी हो जाती है। बहुत सारे मिनट में सर कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगा कि आप माशरा जो है वो सूदखोरी से बचे। सूदखोरी हराम है, सूदखोरी गुनाह है, और इससे जो है वो आप जो पैसा लेते भी हैं उस पैसे में बरकत नहीं होती। उस पैसे से जो है वो आप और ज़्यादा परेशानियों का और गुनाह का मुर्तकिब होते हैं। इसलिए कोशिश करें, अवॉइड करें। हाँ, जहाँ से आपको कर्ज़ हसना मिल रहा है, जहाँ से आपको शेयरिंग के तहत आपको कोई कहता है कि ये पैसे आप मेरे इस्तेमाल करें, सर्विसेज आपकी हैं, तो मुनाफा की रेशो तकसीम कर लें। इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। लेकिन जो लोग ब्लैकमेल करके या अपनी मजबूरियों के ताबे आके आप सूद पे पैसे लेते हैं, तो इनसे अवॉइड करें। ये जुर्म है। देने वाले जो हैं वो भी बाखबर हो जाएं, और अदालतें जो है इसमें महीनों में सज़ाएँ देती हैं, और सैकड़ों लोग जो है वो जेलों में जा चुके हैं। इसलिए बाखबर रहें, और यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।